Assalamualaikum. I am Dr. Mahmood, Assistant Professor of Neonatology. Today topic is newborn resuscitation. Why to learn the newborn resuscitation? Birth area accounts for about 1/4 of the 4 million neonatal deaths that occurs each year worldwide. For many, newborn resuscitation is not available. Outcome of these newborn can be improved with timely and effectively resuscitation. Situation of newborn health in Pakistan. Neonatal deaths are roughly 10 times higher in Pakistan as compared to developed country. More than 25% of neonatal death occurs in the first 24 hours of life. 58% of neonatal death occurs in the first 72 hours of life. 75% of neonatal death occurs in the first week of life. 65% of the births take place at home, 39% conducted by skilled birth attendant, 26% of these births are in hands of traditional birth attendant who are generally untrained, 35% conducted in the institute. Successful transition from the dependent intrauterine life to independent extrauterine life is dependent upon the significant physiological changes that occur at birth. Who will require resuscitation? Any newborns, but most are high risk pregnancy, previous bad experience, malformed baby, multiple pregnancy, diabetic pregnancy, fetal distress, premature intrauterine growth retardation. Every newborn requires basic care. If that care is suboptimal, even non-high risk pregnancy will become high risk pregnancy. Recommendation of British Pediatric Association. Every delivery wherever it takes place should be attended by the person who is responsible for providing basic care to the baby, initiating the resuscitation if necessary. Majority of the cases means 90% of the cases आपको resuscitation की requirement नहीं होती. 10% of the cases assistant to begin breath at birth. Only 1% of the cases में आपको extensive resuscitation की requirement होती है. What is the golden minute? Golden minute means first minute after the birth. The golden minute is the most important time of the newborn. The most important effective action is to ventilate the baby lung. आपको बेबी के फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ के मिनट के अंदर आपने लंग्स में एयर पहुंचानी है. आज के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? टू डेवलप ए लॉजिकल अप्रोच एंड अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन रिससिटेशन. हमारे आज के स्टेप्स क्या होंगे रिससिटेशन के? इसके लिए हमने एक सिंपल एक वर्ड याद रखना है, PSSASBCD. P for preparation, first S for safety, second S for short for help, A for airway, then third S हमने stimulation है, B for breathing, C for circulation, D for drug. तो हमने पूरी रिससिटेशन में जो एक वर्ड याद रखना है, PSSASBCD. जब तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता हम नेक्स्ट स्टेप पे जंप नहीं करेंगे. तो P for preparation, if there is enough time, review the notes, assign the roles, ensure the area is adequately warm, communicate with the parent, check the resuscitation equipment. हमने resuscitation equipment हमने पहले से चेक कर लेने हैं. हमें इक्विपमेंट क्या चाहिए होंगे? इन्फेंट वार्मर चाहिए होगा, स्टॉपवॉच चाहिए होगी, स्टेथोस्कोप चाहिए होगा, एटलीस्ट 2 ड्राई वार्म टॉवल चाहिए, बल्ब पेंगोइन आर्ट, मैकेनिकल शक्कर चाहिए होगा, स्टेलाइज ब्लेड एंड कॉर्ड क्लैम्प चाहिए होंगे, ऑक्सीजन सप्लाई इन केस ऑफ प्रीमेच्योर बेबी, बैग एंड मास्क, एंडोटेकल ट्यूब ऑफ डिफरेंट साइजेस चाहिए होंगे, लैरिंजोस्कोप चाहिए होगा, अम्बिलिकल वेनस कैथेटर या आईवी कैनुला चाहिए होगा, रिससिटेशन ड्रग हमें चाहिए, इंट्रावेनस फ्लूइड चाहिए होंगे, सिरिंजेस चाहिए होंगी, और ट्रांसपोर्ट हमें रेडी रखनी होगी इन केस ऑफ हमने बेबी को इफ़ ट्रांसफ़र करना है. All those who is involved with the care of the neonates, whether it's the primary, secondary or tertiary level hospital, must have an emergency trolley ready all the time with the equipment up to date, drugs required for resuscitation. हम पहला वर्ड था सेफ्टी. जो बेबी के जितने भी सिक्रेशंस होते हैं वो इन्फेक्शस होती है, तो हमने अपने आप को सेफ रखना है.
Always wash the hand before and after before and after taking care of the baby. Wear the gloves. No direct mouth to mouth or mouth to nose breathing. हैंड वॉश के स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप है वेट द हैंड एंड ग्रेस अप्लाई सोप. सेकेंड स्टेप है राइट पाम इज ओवर द लेफ्ट एंड लेफ्ट ओवर द राइट. थर्ड स्टेप है पाम टू पाम आर द फिंगर इंटरलॉक. फोर स्टेप है बैक फिंगर टू अपोजिंग द फिंगर इंटरलॉक्स. फिफ्थ आपका फिफ्थ स्टेप है रोटेशनल रबिंग ऑफ द राइट थंब clamps in the left palm and vice versa. And sixth step a rotational rubbing back and forward with the top of the finger and thumb of the right hand in the left and vice versa. ये ये पिक्चर है. इसके अंदर दो बेबीज़ हैं. किसको रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी? जो बेबी तो हमने तीन चीज़ें देखनी है. बेबी टर्म है, प्री टर्म है, बेबी क्राई कर रहा है नहीं कर रहा, बेबी का मसल टोन कैसा है. तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है. नंबर वन तो आपने तो आपका जो लेफ़्ट बेबी है उसका फ्लैक्स पोजीशन है, पिंक है और पिंक बेबी है और है ना क्राई कर रहा है, तो इसको रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो आपने इसको ड्राई करना है. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मदर के साथ करवा देना. उसको कवर कर देना विथ ड्राई शीट टू मेंटेन द टेम्परेचर के लिए. और कॉट को क्लैम्प करना है 1 to 3 मिनट्स में. और बेबी को ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन के लिए मदर को कह देना है कि वो उसको कंटिन्यू ऑब्जर्व करती रहे फॉर ब्रीथिंग, कलर और एक्टिविटी के लिए. तो आपने 90% ऑफ द केसेस में आपका बेबी तो आपको रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप उसको मदर के हैंड ओवर कर देंगे. और बाकी रिमेनिंग 10% ऑफ द केसेस में अगर बेबी क्राई नहीं करते तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे. हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टिमुलेशन. तो आपने बेबी को मदर से सेपरेट कर देना, उसको वार्मर के नीचे ले जाना है. अगर एयरवे में सिक्रेशन है तो क्लियर द एयरवे करना है और बेबी को ड्राई कर देना है. अगर बेबी स्टिल क्राई नहीं कर रहा तो हम स्टिमुलेट कर देंगे. ठीक है, अगर बेबी इस स्टेप पे भी स्टिमुलेशन के बावजूद बेबी क्राई कर लेता है तो हम बेबी को हैंड ओवर कर देंगे. हम ग्रीन जोन में आ जाएंगे, मींस हमें फर्दर स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और बेबी क्राई कर गया तो हम बेबी को मदर के हैंड ओवर कर देंगे और उसको ऑब्ज़र्व करते रहेंगे और 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसको फीड करवा देंगे. अगर हमें एयरवे क्लियर करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें पेटेंसी ऑफ द एयरवे को पैटर्न रखने के हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं. एक ओपन द एयरवे, हम एयरवे को ओपन करेंगे, और सेकंड है क्लियर द एयरवे को ओपनिंग ऑफ द एयरवे के लिए हमने क्या करना है, बेबी की न्यूट्रल पोजीशन बनानी है और चिन लिफ्ट करना है. व्हाट इज़ द न्यूट्रल पोजीशन? नोज एंड माउथ आर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द टेबल. तो और हमने बेबी को होल्ड द हेड ऑफ द न्यूबॉर्न इन न्यूट्रल पोजीशन और चिन लिफ्ट करेंगे तो हमारा एयरवे ओपन हो जाएगा. ये पिक्चर है. इसके अंदर तीन पिक्चर हैं. एक टॉप वन है, एक मिडल वन है, लोअर वन है. जो टॉप वन है वो उसमें नेक उसकी हाइपर फ्लैक्स है. मिडल वन में न्यूट्रल पोजीशन है और स्लाइडली चिन लिफ्ट है. और स्लाइडली नेक एक्सटेंड है. और जो सबसे लोअर मोस्ट है उसके अंदर हाइपर एक्सटेंडेड नेक है. तो मीन्स तो आपने कौन सी पोजीशन बनानी, तो इसमें करेक्ट पोजीशन मिडल वन है. एयरवे को क्लीन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? बल्ब शक्कर चाहिए होगा या बल्ब शक्कर या पेंगुइन शक्कर चाहिए होगा या आपको सक्शन मशीन चाहिए होगी. मेथड क्या है? हमने पोजीशन ऑफ द बेबी बनानी है, स्लाइडली नेक से एक्सटेंड करना है, चिन लिफ्ट करनी है, सक्शन ऑफ द माउथ, पहले माउथ की सक्शन करनी है, देन नोज़ की करनी है टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ द माउथ कॉन्टेंट्स. माने हम माउथ की सक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें जो उसके माउथ कॉन्टेंट्स हैं वो एस्पिरेशन होने से. ये स्टेप्स हैं. इफ़ आपके पास मैकेनिकल शक्कर नहीं है तो आपने बल्ब शक्कर से आप इसको सक्शन कर सकते हैं. हर स्टेप के बाद हमने असेस करना है. आपने
आपने स्टिमुलेशन किया था। स्टिमुलेशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था, हमने उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले बेबी को असिस्ट करना। हमने 2 सिस्टम असिस्ट करने, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट रेट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम एपनिया देखेंगे, बेबी एपनिया में नहीं है, गैस्पिंग में नहीं है, लेबर ब्रीथिंग में नहीं है, पर्सिस्टेंट साइनोस नहीं है। अगर बेबी लेबर ब्रीथिंग और पर्सिस्टेंट साइनोस है, हार्ट रेट इसका मोर देन 100 है, तो हम कंटिन्यू ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कर देंगे और ऑक्सीजन लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द बेबी नीड, ठीक है। और उसको नर्सरी में एडमिट कर देंगे फॉर पोस्ट रिससिटेशन केयर। एक बेबी है जो गैस्पिंग है, एपनिया है और हार्ट रेट लेस देन 100 है, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्रीथिंग। हम ब्रीथिंग कहते हैं उसको प्रोवाइड करेंगे बाय द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक एम्बो बैग चाहिए होगा। सेकेंडली हमने मास्क चाहिए जो डिफरेंट साइजेस के होंगे। ऑक्सीजन सप्लीमेंट इन केस ऑफ प्रीमेच्योर बेबी के लिए। प्री रिक्वेस्ट क्या है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के पोजीशन ऑफ योरसेल्फ, हमने अपनी ऐसी पोजीशन बनानी है जिसमें हम कंफर्टेबली हम उसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर सकें। पोजीशन ऑफ द बेबी हेड, बी श्योर दैट द एयरवे क्लियर है। सेलेक्टेड अप्रोप्रिएट साइज मास्क। What is the appropriate size mask? Appropriate size mask means it should be cover the nose and mouth, ठीक है। इतना कवर्ड होना चाहिए कि ना तो वो चिन से नीचे आ रहा हो या ना तो आइज़ को कवर कर रहा हो, में के एयर टाइट सील हो, ठीक है। कैसे करना है, तो हमने ऑलरेडी वर्ड्स डिस्कस, हम पूरे रिससिटेशन में कुछ वर्ड याद रखेंगे। नंबर 1 था PSSAS BCD, सेकेंड वर्ड है 2-3 ब्रेथ। नॉर्मल न्यूबॉर्न का रेस्पिरेटरी रेट होता है 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट, तो हम 2-3 पर रिलीज़ करेंगे बैक को और ब्रेथ पे हम प्रेस करेंगे बैक को, ठीक है। कब तक करनी है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन फॉर 30 सेकेंड्स। आफ्टर द अफेक्टिव वेंटिलेटिंग फॉर अबाउट 30 सेकेंड आपने थोड़ी देर के लिए रुक जाना है और बेबी को असिस्ट करना है। असिस्ट क्या करना है कि बेबी का हार्ट रेट देखना और बेबी की ब्रीथिंग देखनी है। अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है, बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग आर इट वीक ब्रीथिंग। अगर हार्ट रेट मोर देन 100 है और बेबी ब्रीदिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसको कंटिन्यू पॉजिटिव वेंटिलेशन कंटिन्यू करेंगे और हर 30 सेकंड के बाद असिस्ट करेंगे फॉर रेगुलर ब्रीथिंग के लिए और हार्ट रेट मोर देन 100 के लिए। और जब तक आप उसके रेगुलर ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप उसको स्टॉप करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना और उसको नर्सरी में एडमिट कर देंगे फॉर पोस्ट रिससिटेशन केयर के लिए। अगर एक बेबी का हार्ट रेट लेस देन 100 है और बेबी स्टिल नॉट ब्रीथिंग और वीक ब्रीथिंग करें, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मिस्टर सोपा। व्हाट इज़ द मिस्टर सोपा? मिस्टर सोपा इज बेसिकली द स्टेप्स ऑफ रीच चेकिंग द एयरवे। एम फॉर मास, आपने देखना है मास आपका अप्रोप्रिएट साइज़ था कि नहीं था। रिपोजिशन, हेड की पोजीशन प्रॉपर है कि नहीं है। अगर सिक्रेशन है तो आप सक्शन कर लें, अगर माउथ क्लोज है तो ओपन द माउथ कर लें, इंक्रीज प्रेशर कर लें अंटिल इज ईजिली राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट हो। और आप अल्टरनेट सोचेंगे, अल्टरनेट सोचेंगे मे बी पॉसिबिलिटी बेबी कॉर्नियालेटेजिया हो तो आपको एयरवे की नीड पड़ जाए। अगर बेबी पेयरॉबिन सिंड्रोम है तो आप उसको प्रॉन पोजीशन में लिटा दें। और अगर कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया सस्पेक्टेड कर दें तो एंडोट्रेकियल ट्यूब की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, ठीक है। अब आपने इसको मिस्टर सोपा भी किया। अब हार्ट रेट उसका लेस देन 60 नहीं है, मोर देन 60 है, तो आप उसको कंटिन्यू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक उसकी रेगुलर ब्रीथिंग स्टार्ट ना हो जाए और हार्ट रेट मोर देन 100 ना हो जाए। जब 100 मोर देन 100 हो जाएगा और रेगुलर ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप पोस्ट रिससिटेशन केयर नर्सरी में एडमिट कर देंगे फॉर पोस्ट रिससिटेशन केयर। इफ़ द बेबी का हार्ट रेट स्टिल लेस देन 60 है, आपने 30 सेकेंड्स के लिए आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे चुके हैं, मिस्टर सोपा कर चुके हैं, स्टिल चेस्ट राइज नहीं हो रही, हार्ट रेट लेस देन 60 आप, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जो हमारा है चेस्ट कंप्रेशन का। सी फॉर चेस्ट कंप्रेशन। वेयर शुड वी डू इट? हम चेस्ट कंप्रेशन कहाँ पे करते हैं? द एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन आर done at the lower 1/3 of the sternum, which lie between the G5 portion and a line draw between the nipple, ठीक है। लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे करते हैं, ठीक है। हाउ शुड वी डू इट? हम कैसे करेंगे?
डेफिनेटली हमें सेकंड पर्सन की रिक्वायर्ड होगी फॉर चेस्ट कंप्रेशन के लिए। हमारा दो मेथड है, एक थंब टेक्निक्स है और सेकंड है टू फिंगर टेक्निक। थंब टेक्निक, टू थंब आर यूज टू डिप्रेस द स्टर्नम वाइल two thumb are used to depress the sternum while the hand is encircling the torso and the finger is supporting the spine. Thumb can be placed side by side or in the small baby one over the other. Thumbs should be flexed at the distal interpharyngeal joint and pressure should be applied vertically to compress the heart. Two thumb techniques are better than two finger techniques. What is the two finger techniques? With the two finger technique, the tip of the middle finger and other index finger or the ring finger of the one hand are used to compress the sternum. Position of the two fingers should be perpendicular to the chest while the back of the baby is well supported. This method may be useful if your hand is too small to encircling the chest. Depth is approximately 1/3 of the anterior posterior diameter of the chest. Duration of the compression should be less than the duration of the release. The thumb and the finger should not be lifted off the baby in between the compression. आपने चेस्ट कंप्रेशन कैसे करनी है? 1 and 2 and 3 and ब्रेथ। वन पे आप उसको प्रेस करें, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, एंड पे आप उसको रिलैक्स माने एक्सपेंड होने देंगे चेस्ट को। 2 पे प्रेस करेंगे, एंड पे रिलीज़ करेंगे। 3 पे प्रेस करेंगे और एंड पे रिलीज़ करेंगे, और ब्रेथ पे सेकंड पर्सन उसको एम्बो बैगिंग करेगा। ये आप कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड के बाद आप वापस हार्ट रेट असेस करेंगे और चेस्ट मूवमेंट देखेंगे। अगर आपका हार्ट रेट इज़ मोर देन 60 हो जाता है तो आपने चेस्ट कंप्रेशन स्टॉप करनी है और कंटिन्यू वेंटिलेशन टिल द रेगुलर ब्रीथिंग इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, और आप हर 30 सेकंड्स तक देखेंगे जब तक उसको कंटिन्यू ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है और हार्ट रेट ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है और हार्ट रेट मोर देन 100 हो जाता है, तो आप बैगिंग स्टॉप कर देंगे और उसको नर्सरी में एडमिट कर देंगे फॉर पोस्ट रिससिटेशन केयर। अगर स्टिल हार्ट रेट लेस देन 60 है तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, जो है ड्रग्स का। ड्रग्स आपको क्या चाहिए होगी? एपिनेफ्रिन चाहिए होगी। एपिनेफ्रिन का रिकमेंडेड डोज है 0.01 to 0.03 mg पर kg पर डोज है, जो 0.1 to 0.3 ml पर kg बनता है। जो डिज़ायर कंसनट्रेशन इज़ 1:10,000 हमें रिक्वायर्ड होगी, जो हमारे पास अवेलेबल है इस 1:1000, जिसको हम इसको कन्वर्ट कर दें 1 cc। हम एपिनेफ्रिन को 9 cc नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके इसको 1:10,000 बना देते हैं। अब वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या चाहिए, कब चाहिए होंगे? इफ़ वी आर सस्पेक्टेड आर द नॉन ब्लड लॉस है, इसके लिए हमें नॉर्मल सलाइन चाहिए होगा या ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए होगा। हमने 10 ml पर kg के हिसाब से दे देना होता। पोस्ट रिससिटेशन केयर में अवॉइड द हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया, मॉनिटर द वाइटल्स, मॉनिटर द ब्लड शुगर्स, मॉनिटर द इवेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब पास की है तो डेफिनेटली एंडोट्रेकियल ट्यूब की केयर चाहिए। स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर पॉसिबल है विद तो आप करवा दें। रीअसेस द बेबी एज रिक्वायर्ड, डिपेंड अपॉन बच्चे की कंडीशन कितनी सीवियर है। आपने जो स्टेप्स के हैं उसको आपने डॉक्यूमेंट कर देना और काउंसलिंग पेरेंट्स की कर देनी है। स्टॉप रिससिटेशन कब करनी है? अफेक्टिव स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन हैज़ बिन एस्टैब्लिश, द एग्जिस्टिंग ऑफ द DNR एस्टैब्लिश। अगर आपका 20 मिनट तक आपने चेस्ट कंप्रेशन की है और आपने रिससिटेशन की है, स्टिल हार्ट रेट आपका हार्ट रेट डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो आप रिससिटेशन स्टॉप कर देंगे एंड डिक्लेयर डेथ कर देंगे। आफ्टर आपने सीनियर से कंसर्न करने के बाद आप इसको डेथ डिक्लेयर कर देंगे। थैंक यू।